हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। आज का टॉपिक है मेरा मुनव्वर जमा साहब के ऊपर। देखिए, बहुत सारे ऐसे वीडियो स्प्रेड हुए हैं कि मुनव्वर जमा साहब को अरेस्ट कर लिया गया है, जो कि झूठ है, फॉल्स है। We are joined by North Zone DCP Rashmi madam. Madam, what do you have to say about this particular incident? So today morning at around between 4:45 to 5, we received report that this Mutyalamma temple in Market PS limits, some person has entered the temple and removed the idol, vandalized the idol, and this kind of information came. So immediately our police team has responded and we have reached the spot. And that person, locals only caught him. So with the help of locals, this person was apprehended. He received some injuries. So presently he's in a very serious state in the hospital, and we are verifying his details and as to where he has come from. After seeing all the CCTVs, only one person has been identified, the same person who is in our custody. As soon as we get further details, we will inform the media. So what was the motive behind this I'm particular? saying he is presently unconscious, so No we identification. are in the process of identifying. Once we get all the details, then we will hold a proper media briefing and inform the media. Right? Thank you, sir. So this was North Zone DCP Rashmi madam speaking about this incident. This incident where Mutyalamma temple, right close to the regional passport office here in Secunderabad, is where the vandalization or desecration of an idol inside had taken place. A man who's not identified yet but has been detained by the police, by the locals, and then taken away by the police, is right now undergoing treatment in the hospital, is what the DCP has to say. But here what we see is that that particular man at around 3:45, around 4 o'clock a.m. in the morning had entered this particular premises. What we know from the CCTV footage is that the man walks in from this side of this lane, enters towards this door, comes to close to this door at this particular point, kicks the door of this particular temple, and then gets inside and vandalizes the idol. Then later what the eyewitnesses say is that he moves out of the temple and then climbs above at this particular premises and tries to vandalize that idol as well. So that is when the residents notice him and then detained. After the residents have detained him, then he was handed over to the police, and then his health condition is said to be critical and he's undergoing treatment in the hospital. The police is right now investigating this particular matter, and the motive behind the incident and identification of this particular accused is yet to be ascertained. With camera person Damodar, Abdul Bashir Hadi. और ये सारी न्यूज कुछ यूट्यूबर्स, 3 से 4 यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों ने बनाया है। सिर्फ थंबनेल में उन्होंने बोला है कि मुनव्वर जमा अरेस्ट हो गए, बट उनकी वीडियो कंटेंट में कहीं भी नहीं है। तो आज की मेरी वीडियो मुनव्वर जमा की FIR और जो भी उनके ऊपर चार्जेस लगे उनके ऊपर है। तो ये वीडियो पूरी लीगल एस्पेक्ट से रहेगी। और चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एज पर FIR मुनव्वर जमा, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उनकी क्लासेस है, वो स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देते हैं, प्लस लोगों को प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं, ग्रामर सिखाते हैं, बहुत सारी उनकी क्वालिटीज है। तो उनके एक लेक्चर यानी कि उनका एक सेमिनार था, जो सेमिनार एक होटल में हुआ। मैं आपको जो भी चीज़ बता रही हूँ वो FIR के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। FIR मैंने डाउनलोड की है। तो देखिए, FIR में उनको सबसे पहले तो प्राइमरी अक्यूज बनाया गया, दूसरा जो होटल का मालिक है और जिसने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, इन तीनों के ऊपर FIR है। आपको ये भी बताती चलूं कि इस FIR के अगेंस्ट यानी कि क्रॉस FIR भी रजिस्टर्ड हुई है, जिन लोगों ने उस होटल पे और इन लोगों पे पथराव किए। तो मतलब 2 FIR है दोनों पार्टी की, मतलब A ने B पे किया है और B ने A पे किया है। तो इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। FIR के कंटेंट में क्या दिया हुआ है कि 151 लोगों ने एक सेमिनार अटेंड किया था, जो कि 1 मंथ का सेमिनार था, जिसके लिए होटल के रूम बुक किए गए थे, जो कि 49 रूम्स थे। अब ये पुलिस का ऐसा बोलना है कि ये प्रोग्राम के लिए उन्होंने कहीं से भी पुलिस की परमिशन नहीं ली थी। आगे पिछले जितने प्रोग्राम हुए हैं, अगर उनमें उन्होंने परमिशन ली है तो मैं नहीं जानती हूँ कि उन्होंने परमिशन ली थी या अब नहीं ली है। उन्होंने क्या किया, तो पुलिस ने एक चार्जेस तो उन पर यह लगाया है कि उन्होंने प्रॉपरली पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। थोड़ा सा पॉज लेते हैं यहाँ पर। जब भी हम कोई प्रोग्राम में जाते, जैसे कि मुझे कोई प्रोग्राम में कहीं इनवाइट कर रहा है कोई, हमारी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपने पास में जो किया होगा। अभी याद रखिए, हम कोई भी प्रोग्राम में जा रहे हैं जहां पर 20 से ज्यादा लोग आने वाले हैं, कोई हॉल में, कोई मंडप में, कोई मैदान में, या किसी होटल में, या किसी के घर पे, या किसी बिल्डिंग में, तो अगर वो फैमिली फंक्शन ना होते हुए कोई रिलीजियस, कोई पॉलिटिकल या कोई सोशल इवेंट है, तो हमेशा पहले ये मालूम कीजिए कि क्या उस ऑर्गेनाइजर ने वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म किया है, उनके पास पुलिस का
वेरिफिकेशन लेटर है, एनओसी लेटर है, अगर है तो ही वो प्रोग्राम में जाइए, वरना आपके साथ क्या होगा वो आप आगे देखिए। ये पॉइंट को अभी हम यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। अटेंडेंस लोगों को पता नहीं था, जो भी पे किया था, पे करके उन लोगों ने 49 रूम बुक किए थे, एक रूम में 3 या 4 शेयरिंग, जो भी लोग रुके वो प्रोग्राम अटेंड किया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम से निकलने के बाद सलमान सलीम ठाकुर नामी एक लड़का, उसके साथ में एक और लड़का था, और ये दोनों डॉक्टर जाकिर नायक, जो कि अभी इंडिया में फरार यानी कि फुजिटिव घोषित हो गए हैं, यानी कि भगोड़ा, यानी कि अब उनका घर, उनकी प्रॉपर्टी जो भी इंडिया में है, सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट के पास रहेगी और वो कभी भी इंडिया नहीं आ पाएंगे। अगर वो इंडिया आते हैं तो उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि उनके बहुत सारे फॉलोअर टेररिस्ट निकले हैं और उनके खुद के कंटेंट जो वो बोलते थे वो भी निकले हैं टेररिज्म वाले। और अभी वो बंदा पाकिस्तान भी चला गया। हमें पता होना चाहिए हम पाकिस्तान से एनिमी कंट्री में है, हमें ना ही पाकिस्तानियों से बात करना है, ना ही उनसे कोई ट्रांजैक्शन करना है, सोशली इवेंचुअली कोई भी, हमें उनसे कुछ खरीदना भी नहीं है इंडिया में रहकर। तो फिर आप कैसे, अगर आपको इंडिया में वापस आना होता तो आप वहां जाते नहीं, मतलब उस बंदे को आना नहीं है। तो उस बंदे, और ये लोग क्या करते हैं, हेट रेट फैलाते हैं अपनी स्पीचेस के अंदर। तो डॉक्टर जाकिर नायक, मैं तो कभी सुनती नहीं इस बंदे को, मुझे पता नहीं है, तो अगर आप लोग सुनते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो उन्होंने ऐसा हेटरेट फैलाया कि उनको फॉलो करने वाले एकदम जंग पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो कुछ जाहिल लोग ही होते हैं जो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं होते हैं। वो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी और अब आ गए यूट्यूब यूनिवर्सिटी, इसी से नॉलेज लेते हैं और इसी से इंस्पायर होते हैं। तो वो लोग ऐसे काम करते हैं। तो इस बंदे का मतलब सलमान सलीम ठाकुर, जिसने उस मंदिर में जाके, देखिए हमें साफ साफ बोला गया है, इवन दो अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि आप उनके खुदाओं को बुरे नामों से ना पुकारो, क्योंकि आप उनके खुदाओं को बुरे नामों से पुकारेंगे ना तो वो भी आपके खुदा को गाली देंगे। हमारा तो एक खुदा है ना, हम तो वहदानियत को मानते हैं, तो फिर क्यों हम उनके खुदाओं को गाली दे। देखिए विजडम, हिकमत भी कोई चीज होती है। हर दौर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नहीं है कि हम पहुंच जाए और मूर्तियां तोड़ दे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको किसी को बताना है कि आपका दीन ज्यादा अच्छा है, आप आपके दीन को स्प्रेड करना चाहते हैं, आप दावा करना चाहते हैं, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। ये तो जहालत है ना, आप जाके उनके मंदिरों में तोड़ दें, ये बहुत गलत काम है। तो ये काम उस बंदे ने किया। अब क्या हुआ, वो बंदा बोल रहा, अभी तो वो फिलहाल हॉस्पिटलाइज है क्योंकि पब्लिक ने उसे बहुत मारा, और मैं बोलती हूँ बहुत अच्छा किया कि उसे कूटा पकड़ के। ऐसे ही कूटेंगे ना 2-4 लोगों को तब उनकी अक्ल ठिकाने आएगी। तो उसकी कुटाई करने के बाद में उसको भेज दिया गया है, अभी आई थिंक वो आईसीयू में है। तो वहां उसने स्टेटमेंट दिया है कि मैं फॉलो करता था डॉक्टर जाकिर नायक को, और मैं अभी रिसेंटली गया था मुनव्वर जमा के प्रोग्राम पे। अब क्या हुआ, डॉक्टर जाकिर नायक को तो पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो यहाँ है नहीं, तो बलि का बकरा बने कौन। तो हुआ है ये, मतलब ये मैं अपने साइड से बोल रही हूँ, एफआईआर का पूरा कंटेंट मैंने पढ़ लिया है। तो और पढ़ने का तो यही मालूम पड़ा है कि मुनव्वर जमा के अगेंस्ट अभी तक कोई एविडेंस नहीं लगे हैं। अब हम आएंगे कि इन्वेस्टिगेशन। मैंने अब तक आपको बताया एफआईआर का कंटेंट, फिर प्रोग्राम क्या था, फिर मैंने आपको बताया कि अब एफआईआर के बाद होता क्या है। तो कुछ यूट्यूबर ने वीडियो बनाया कि वो अरेस्ट हो गए, तो अब तक फिलहाल ऑफिशियली ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि वो अरेस्ट हो गए। अगर वो अरेस्ट हुए होते तो वेरी नेक्स्ट डे 24 आवर्स में उन्हें मजिस्ट्रेट के आगे हाजिर किया गया होता, या तो उन्हें जेल हुई होती या तो बेल हुई होती। तो ऐसी कुछ भी अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है, इसका मतलब कि वो अरेस्ट नहीं हुए हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उन्होंने भी हाई कोर्ट में या फिर सेशन कोर्ट में डाली होगी बेल, बट मैंने वो भी चेक किया तो अब तक उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल भी फाइल नहीं की है। तो इसका मतलब है कि मुनव्वर जमा रिलैक्स है, उनको पता है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। अगर कुछ किया है तो प्रूफ होने के बाद ही पुलिस उनको अरेस्ट करेगी, है ना। और वो डालेंगे भी तभी एंटिसिपेटरी जब उनको लगेगा कि मेरे कंटेंट में ये था और मैं सफाई दूं कि नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये था। हम सब जानते हैं, जितने भी लोग मुनव्वर जमा को फॉलो करते हैं वो सब जानते हैं कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। सिर्फ मुस्लिम्स को ही नहीं, नॉन मुस्लिम्स को भी वो बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं।
तो उनका जो भी वीडियो होता है वो सारा रिकॉर्ड हुआ होगा। वो 30 दिन का सेशन उनका फुल्ली रिकॉर्ड होता है। अभी पुलिस दो काम कर रही है, एक तो उनके पूरे वीडियो की स्क्रूटिनी कर रही है, दूसरा जितने भी अटेंडीज है 151 उन सबसे पूछगछ चालू है। पूछगछ हो जाएगी, वीडियो देख लेंगे, अगर कंटेंट पाया गया तब जाकर या तो उन्हें अरेस्ट किया जाएगा या तो वो डालेंगे बेल। तो अब तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है। तो जो लोग भी झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि मुनव्वर जमा को अरेस्ट कर लिया गया, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। जबरदस्ती मुस्लिम्स में हेटरेट मत फैलाइए। कानून इतना भी बुरा और गलत नहीं है जितना कि कुछ अनपढ़ लोगों ने बना रखा है। आप कानून का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं ना, तो जो जानते हैं ना उनसे सीखिए, बट अपने ही मन से ये मत बोलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन गलत है, ये गलत है। कुछ गलत नहीं है, गलत आप है, आप जैसे लोग हैं जो गलत चीजों को प्रमोट करते हैं, गलत चीजों को अपने चैनल पे अपलोड करते हैं और गलत चीजों को स्प्रेड करते हैं। और आप ही की वजह से ना बेचारे मोटिवेशनल स्पीकर, रिलीजियस ग्रुप हंसते हैं। अगर हम यहाँ बात करें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की, तो उनके वीडियो का कंटेंट जो भी रहा होगा, अभी तो उनको कोर्ट ने तो उस चीज के लिए फ्री कर दिया है कि उनका कंटेंट हेटरेड नहीं है, बट उतनी ही क्लिप को लेके ना उनके ही जो फैन फॉलोइंग है, जो जाहिल फैन फॉलोइंग है मोस्टली, उन लोगों ने ना शॉर्ट्स बना बना के, क्लिप बना बना के पहले भी अपलोड करते थे और आज भी अपलोड करते हैं। इवन तो मैंने आज ही एक वीडियो देखी, मुफ्ती सलमान अजहरी तो जैसे ही रिहा हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, वो चले गए हुबली, उनके होम टाउन में। अब वो तो हुबली में है और वहां पर उन्होंने कोई बयान भी नहीं दिया। एक ही वीडियो रिलीज किया था कि मैं अभी फिलहाल ये स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूं कि मैं कोई तकरीर करूं। ठीक है, वो वहां नमाज पढ़ रहे होंगे, नमाज पढ़ा रहे होंगे, लेकिन लोगों ने उनके नाम से झूठ वीडियो अपलोड कर दिए। 9 घंटे पहले ही एक न्यूज चैनल ने उनका 2023 का वीडियो अपलोड किया, ये लिखते हुए कि जेल से आने के बाद उन्होंने ये इंटरव्यू दिया। वो पूरा इंटरव्यू मैंने सुना और अच्छा हुआ कि उसमें मुफ्ती सलमान अजहरी ने ही एक्सप्लेन किया कि 2023 का वीडियो है ये। तो देखिए कितना मिसगाइड करते हैं लोग सोशल मीडिया के मतलब प्लेटफॉर्म का और लॉ का भी। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप लोग सब्र रखिए। देखिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ 100% अगर मुनव्वर जमा साहब ने कुछ बोला भी होगा ना तो वो अरेस्ट नहीं होंगे, या तो वो एंटीसिपेटरी डालेंगे या वो अक्विट होंगे। तो हेट्रेड मत फैलाइए, हेट्रेड मत फैलाइए, हेट्रेड मत फैलाइए, कानून को बुरा मत बोलिए। अगली वीडियो जरूर बनाऊंगी इस बारे में जो भी मालूम पड़ेगा। तब तक के लिए ये बात याद रखिए कि अगर किसी भी रिलीजियस गुरु, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर पे, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, अगर एफआईआर होती है तो उन्होंने क्या बोला है, जैसे कि मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ उसकी स्क्रूटिनी होती है। अगर उसमें वो हेटेड कंटेंट पाया जाता है तो ही एफआईआर होती है, ऐसे एफआईआर नहीं होती। आप लोग ये मत बोलो कि पुलिस ने फंसा दिया, पुलिस भी झूठी एफआईआर ऐसे ही नहीं लेगी। तो एफआईआर लेने के पीछे भी कानून है, आपको बेल मिलने के पीछे भी कानून है, आपको सजा होने के पीछे भी कानून है। और आप जो भागते हैं ना तो कानून के डर से ही भागते हैं। तो अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं जहां पे आपको लगता है कि कानून गलत है और आपकी हेल्प नहीं हो पाई, या आपको लग रहा है कि आप कानून के मिसयूज का या फिर किसी ने आपके साथ में कोई धोखाधड़ी किया है, तो आप जरूर मुझे कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मेरी अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।